चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ रहे थे एंड लेट अस प्रोसीड इन दिस चैप्टर। आगे आप देखेंगे हम लोगों की बात चल रही थी, वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट स्पीड। मैंने आपको बताया था इन द बिगिनिंग व्हाट हैपेंस इन एन आइसोलेटेड कंडक्टर इज देयर इज अ लॉट ऑफ रैंडमनेस। काफी रैंडमली सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, ड्यू टू विच their net displacement is zero, and hence we conclude that the current in that wire will be zero. But then what happens when you connect a battery across that particular conductor, या फिर when you make that particular wire connected with certain source of you can say either charges or any source which can supply the current or which can give the potential difference or which can give the external electric field. When you supply such source to the wire, that means when the wire is no longer isolated, in that situation what happens, a force starts acting on each and every electron, which starts drifting all the electrons in a confined direction. That confined direction, when once achieved by any number of electrons in a conductor, then we call that flow as a steady flow of electrons, and that contributes to a steady flow of electric current. ये हम लोगों ने लास्ट कुछ क्लासेस के अंदर डिस्कस किया था. Now that steady flow का जो स्पीड होता है, that is the drift speed which we were talking about in last class, was Vd is equals to E upon Me into tau, where tau is the relaxation time. Remember it? Correct. So now today we will proceed with the expression of current. Now how to proceed to current expression from this drift velocity? Today we will begin with that. So the first heading for today's class is relation between current and drift velocity. Let's suppose I am taking an area, taking particular wire. This section of wire has length L and the cross section area is A. Now just write this language. This particular material, whatever it is, copper, gold, silver, whatever wire segment it has n number of charges. It has n number of charges per unit volume. It has what? N number of charges per unit volume. यानी कि 1 मीटर क्यूब के अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है वो है n, चार्ज जो प्रेजेंट है वो है n. तो अगर मैं बात करूं इसी यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो मुझे n इंटू ई करना पड़े, राइट. तो 1 मीटर क्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो हो जाएंगे n इंटू ई. अब अगर मैं बात करता हूं पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे को पिक करना है, तो मैंने ये छोटा सा यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया शेड कर रखा है और इसको पिक कर लिया, ये वाला, और इसकी लेंथ मैंने dl ले ली. ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया तो पाइप का या फिर वायर का ए है ही सही. तो द वॉल्यूम विच बिकम्स हेयर स्मॉलर वॉल्यूम इज dv एंड इट विल बी a इंटू dl, a इंटू dl, एरिया इंटू हाइट, जो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है. नाउ इफ आई वांट टू राइट द चार्ज प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, द होल चार्ज विच इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दैट इज विद vd स्पीड, जो भी चार्जेस हैं जो अंदर vd स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं इस तरफ, आगे की तरफ, तो अगर मैं उनकी बात करता हूं तो आई विल राइट द चार्ज इन दिस सेक्शन इज इक्वल टू n इंटू ई, जो कि 1 मीटर क्यूब के अंदर चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, इंटू dv, दैट वॉल्यूम. तो वॉल्यूम इज a इंटू dl. ये मल्टीप्लाई करते दिस बिकम्स द net charge, that is dq charge present in this section. Now the faster the charge will flow, the more will be the current. This is what we have learned in the last class. I is equals to dq by dt. So applying the same phenomena, I equals to dq by dt, you will get, you have to do a differentiation, and hence dq by dt, here it will be dl by dt, and dl by dt is basically speed. So in this case we know the speed is vd, so I have replaced dl by dt with vd. यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस एक्सप्रेशन, दैट इज I is equals to NEA VD. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ट्राई टू रिमेम्बर इट थ्रू आउट द चैप्टर ना. ठीक है. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ VD जो हम लोगों ने रिमेम्बर कर रखा है लास्ट टाइम से, तो आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ VD. यू कैन सी in this entire term there is only one vector quantity here which is E. तो मैं कह सकता हूँ current will always follow the direction in which electric field is oriented. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही करंट की डायरेक्शन होगी. फ्रॉम दिस आई कैन कंक्लूड टू दैट. अब अगर मैं इसी करंट को अगर मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं I by A, so that this J also becomes a vector which is also known as current density. तो J is equals to, ध्यान से देखिएगा, N into E square
a अपॉन एम ई इंटू टाउ इंटू ई वेक्टर। तो इसको मैंने इस तरीके के फॉर्म में ले लिया, विच इज बोथ साइड्स वेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जो है करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी। फ्रॉम दिस आई कैन लर्न लाइक दैट। अब एक रास्ता था कि मैं इस स्टेप से इस स्टेप पे जा सकता था, ठीक है। तो इस स्टेप के बाद आगे क्या हो रहा है पहले वो भी देख लीजिए, फिर इकट्ठा नोट कीजिएगा। तो नाउ this entire term which is n e square tau upon m e, it is called as this sigma, है ना, where sigma is this expression and it is known as conductivity of the material। कोई भी मटेरियल कितना ज्यादा कंडक्टिंग है, कितना इजीली कंडक्ट कर देता है, that constant is basically known as conductivity of the material, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट ऐड कर देता हूँ, it tells us about the ease of conductivity, है ना, इजीनेस बताता है कि कितना इजीनेस होगी किसी भी चीज को कंडक्ट करने के लिए। तो याद रखें, जैसे आप लोगों ने रेजिस्टिविटी पढ़ा है पहले कभी, वैसे ही कुछ ये टर्म है कंडक्टिविटी। क्या रिलेशन है उस पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल सिर्फ ये ध्यान रखिए कि रेजिस्टिविटी का काम रोकने का होता है, कंडक्टिविटी का काम जाने देने का होता है। तो कंडक्टिविटी अगर हाई है तो अच्छा कंडक्टर है, कंडक्टिविटी अगर लो है तो बुरा कंडक्टर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसी एक्सप्रेशन को मैंने दूसरे शेप में लेके आया, मैं ऐसे मैंने क्या किया, ई की जगह अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इट इज डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, आप अच्छी तरह जानते हो। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इस डायरेक्शन में रखा एंड दिस इज द फोर्स विच इलेक्ट्रॉन इज सफरिंग, तो यहाँ पे पोटेंशियल v होगा और यहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा। तो E की वैल्यू जो होती है वो होती है डेल्टा v बाय एल, तो v माइनस 0, यहाँ पोटेंशियल v, यहाँ पोटेंशियल 0, तो v माइनस 0 अपॉन एल, E की वैल्यू हो जाएगी v बाय एल। तो मैंने E की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। नाउ माय एक्सप्रेशन अपीयर्स somewhat like this. Now this entire term, if I compare this by Ohm's law, ध्यान से देखना क्योंकि आप Ohm's law ऑलरेडी जानते हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, हालांकि इसका स्टेटमेंट थोड़ी देर में लिखाऊंगा आपको, बट एज यू ऑल नो फ्रॉम 10th क्लास I is equals to V by R, I can comment that this R term is present here in this form। तो मैंने यहाँ से लिखा R is the resistance and it can be given by this on comparing, है ना, on comparing। Now जो काम की इक्वेशंस हैं जो मुझे फोकस में रखनी है हमेशा, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, नेम दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 व्हिच आई नीड टू बी ऑलवेज केयरफुल अबाउट, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। नाउ फ्रॉम 3 आगे बढ़ो, लेट्स डिस्कस व्हाट इज इन द 3 इक्वेशन, है ना। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन बी केयरफुल एंड सी व्हाट इज विजिबल। R is equals to me अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, एंड इधर L है इधर A है, ठीक है। कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन है जैसा आपको दिख रहा होगा वहां पे। नाउ इफ यू आर एबल टू रिलेट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन टू दिस एक्सप्रेशन दैट इज रो इंटू एल बाय ए, है ना, R is equals to रो इंटू एल बाय ए, ये हमारा एक्सप्रेशन हुआ करता था रेजिस्टेंस का पहले की क्लासेस के अंदर। तो इफ यू कैन कोरिलेट, I can compare them, comparing both, I can easily estimate that rho is equals to me n e square tau, ठीक है। ध्यान से देखो, where rho is known as resistivity of the conductor, where rho is known as resistivity of the conductor and it is clearly visible to you। See, compare this conductivity and resistivity, it means they are somewhat similar, है ना। So they are similar in this regard that sigma is basically reciprocal of 1 upon rho. Check it out. So I can relate here that rho can be written as 1 upon sigma. This is the expression which you need to be careful about. This is the relation between them. Resistivity tells you about the blockage, about the restriction, and conductivity tells you about the conduction only, है ना। So if some material has a higher conductivity, then it's very good conductor. If some material has a higher resistivity, then it's a very bad conductor, like that it is, ठीक है। तो कुछ ज्यादा एक्सप्रेशंस मेरे को लग रहा है बोर्ड पे आपको अभी इस वक्त पे दिख रहे होंगे, बट दीज आर द एक्सप्रेशंस विच कैन बी ओनली टेकन टुगेदर, है ना। मैं इनको ऐसे नहीं कर सकता था कि आई हैव टू कैटेगराइज, मैं कुछ ही बताता आपको फिर कुछ आगे जाके बताता, दे मस्ट बी डन ऑल टुगेदर। इसीलिए मुझे एक ही साथ सारे के सारे एक्सप्रेशंस आपको देने पड़े, एंड आई नो इट इज ट्रबलसम फॉर यू टू रिमेम्बर ऑल ऑफ देम, बट डू वन थिंग, सिर्फ एक फ्रेश पेपर पे राइट ऑल ऑफ दीज एक्सप्रेशन एंड जस्ट
number them 1 2 3 4 5 6 and try to recall when I will tell you in the class. ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे. The time I will tell you, just recall those particular expressions and we will deal with them here. ठीक है, आगे बढ़ेंगे एंड लेट्स डिस्कस ओम्स लॉ. हेडिंग डाल लीजिए फटाफट, ओम्स लॉ. या फिर व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट write the definition part on the board and then we'll get back to the topic again. ठीक है, in the next clip. आगे बढ़ते हैं. लेट्स डिस्कस ओम्स लॉ. ओम्स लॉ ये कहता है बच्चों कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी सम करंट फ्लोइंग थ्रू दैट conductor. ठीक है, so it is stated by Ohm's law that if the physical conditions of conductors such as length, temperature, etc. remains constant, यानी कि यहाँ तो आप उसकी लेंथ मत बदलिए या फिर आप उसका टेम्परेचर मत बदलिए. If these under these physical conditions, if all the physical conditions remains same, then current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference. यानी कि किसी भी वायर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस में लगा रहा हूँ उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो करंट फ्लो कर रहा है it will be directly proportional. Hence I can say that delta V is equals to I into R. अब आप जानते हो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट आता है, ये वही पुरानी चीज है. Where R is proportionality constant known as resistance. रेजिस्टेंस क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ी ही देर में बात करेंगे. जो काम की बात है यहाँ पे वो ये है कि दिस इज अवर ओम्स लॉ जिसको आपको ध्यान रखना है और आगे हर जगह पे हमें यही यूज करना है, तो बी केयरफुल. नाउ इट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ. यूनिवर्सल लॉ वो होता है वो जो हर कंडीशन में हर जगह पे लगाया जा सके. क्योंकि इस लॉ के साथ कुछ लिमिटेशंस हैं, इस वजह से इसको हम यूनिवर्सल लॉ नहीं बोल सकते. द रीजन बिकॉज इट इज ऑलरेडी स्टेटिंग in the first line you have to keep the physical conditions as constant. Whenever you alter them, definitely this is going to change. ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ साथ देखा गया है कि there is a variation and the violation in Ohm's law. तो Ohm's law obey नहीं होता है if temperature continuously varies. इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल लॉ नहीं बोल सकते. ठीक, तो ये पॉइंट ध्यान रखें. नेक्स्ट इज कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं, there are certain devices which follow Ohm's law and those devices are named as ohmic devices, and there are certain devices which do not follow Ohm's law. Such devices will be known ohmic devices. उन devices को हम known ohmic devices बोले. ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा खास बात. Ohmic devices are those whose VI graph is linear. अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पे मैं अगर इसको रीअरेंज कर दूं तो I can write R is equals to delta V by I. ठीक है, तो आपको यहाँ से दिखेगा कि रेजिस्टेंस जो है दैट इज V by I. इफ आई एम ड्रॉइंग अ VI ग्राफ देन डेफिनेटली उसकी स्लोप जो है वो रेजिस्टेंस है. तो इफ स्लोप ऑफ अ VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस और मैं अगर ये कंक्लूड कर दूं कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है ना. ओमिक डिवाइसेस आर दोज हुज VI ग्राफ इज लीनियर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और उनका ग्राफ लीनियर आ जाए VI ग्राफ, तो इसका मतलब ये होता है कि इनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा. समझ रहे हैं बात को? रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा का मतलब क्या है? सपोज मान के चलिए मैंने T1 टेम्परेचर मेंटेन करके रखा 200 केल्विन. ठीक है, तो इस पॉइंट का जो रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट का जो रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट का जो रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इन सभी पॉइंट्स का रेजिस्टेंस अगर मैं 200 केल्विन मेंटेन करके रखता हूँ तो इन सभी पॉइंट्स का रेजिस्टेंस सेम होगा. इसका मतलब ये हो. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ये टेम्परेचर मेंटेन करके रखता हूँ तो इन सभी पॉइंट्स का जो रेजिस्टेंस है वो भी सेम होगा. मैं ब्लैक पेन से डॉट्स बना देता हूँ ऐसे. 150 केल्विन मान लेते हैं इसको. ठीक है, 250. ठीक है, गड़बड़ डन. ठीक है, अब देखिए कुछ रीअरेंजमेंट में दिक्कत थी, ध्यान से देखिएगा. ओमिक डिवाइसेस वो डिवाइसेस हो गए हैं जिनका VI ग्राफ सेम होता है. खास करके आप इसको ऐसे समझिए, अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता हूँ तो ओम्स लॉ फॉलो होता है, एंड ओम्स लॉ अगर फॉलो होता है तो आपका VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है. ऐसे मटेरियल्स, ऐसे डिवाइसेस जो इस प्रॉपर्टी को शो करेंगे दे विल बी नेम्ड एज ओमिक डिवाइसेस, एंड उनके ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन हो. अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, दो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ दे दी जाते हैं जैसे मैं यहाँ दे चुका हूँ आपको, एंड पूछा जाता है कंपेयर करके बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है. तो ऑब्वियसली मैंने अभी भी दिखाया आपको, स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स मी रेजिस्टेंस. तो मैंने बड़ा वाला एंगल θ2 माना है, छोटा एंगल θ1 माना है, तो आई कैन राइट θ2 इज ग्रेटर देन θ1. ये चीज आप नोट कीजिएगा. तो इफ टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड्स
यानी कि tan थीटा अगर मैं लेता हूँ तो tan थीटा 2 विल बी ग्रेटर देन tan थीटा 1 बिकॉज tan इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। याद करिए, ये नाम, इस स्टेटमेंट लिखिए, tan थीटा 2 विल बी ग्रेटर देन tan थीटा 1। सिमिलरली R2 विल बी ग्रेटर देन R1, और अगर रेजिस्टेंस 2 ग्रेटर है यानी कि स्लोप जिसकी ज्यादा उसका रेजिस्टेंस बड़ा, तो R2 विल बी ग्रेटर देन R1। ये स्टेटमेंट यहाँ तक आप जो है इसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब बात करते हैं आखिर रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे इतनी बातचीत कर रहे हैं। दरअसल क्या होता है, आपने अक्सर नोट किया होगा, जब भी किसी रोड पे ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है तो वहां जाम लग जाता है, इजंट इट। कभी किसी का कोई एक गलत स्टेप, गलत मूव, गलत गाड़ी कहीं पे फंस जाती है, या कहीं किसी कोई और मजबूरी के कारण गाड़ी अटक जाती है, बंद हो जाती है, तो उस जगह पे उसके कारण बाकी चारों तरफ जाम लग जाता है, आपने देखा हो। तो यहाँ पे भी बेसिकली कुछ ऐसा ही होता है, जब अपन वायर के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाते हैं तो उनमें क्या होता है, कॉलिजन्स होते हैं। जब हम वायर में से इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ करते हैं जाने के लिए, बिकॉज फील्ड लगाया है आपने, वायर के दोनों तरफ क्या लगाया है, फील्ड लगाया है ना। ऐसे सोचो, ये वायर है, यहाँ पे वोल्टेज V है, यहाँ 0 है, आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हो रहा है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनमें फोर्स लग रहा है इस तरफ, एंड दैट इज अ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हो आप, है ना। तो सभी के ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब इस फोर्स के कारण उनमें मोशन प्रोड्यूस होगा। अब होता क्या है, फोर्स इतना तेज लगता है कि ये आपस में इलेक्ट्रॉन जो है धक्का खाते हैं, टक्कर मारते हैं एक दूसरे को, धड़ूम धड़ाम कोलिजन्स होते हैं बहुत सारे बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। कोलिजन्स होते हैं, तो ये कोलिजन्स की मात्रा जैसे ही आप फील्ड लगाते हैं और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इस हाई स्पीड पे टक्कर बहुत ज्यादा तेज होती है। टक्कर होती है, अगला वाला जिससे टक्कर हो रही है वो आगे को जाके टक्कर मारता है, और जिससे जो पीछे से आके टक्कर करके गया वो पीछे रिबाउंड होके पीछे दूसरे वाले पे जाता है। तो ऐसे मल्टीपल कोलिजन्स होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो चीज यहाँ से शुरू हुई थी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चालू हुआ था, इसको टक्कर होने के कारण ये काफी वक्त यहाँ वेस्ट कर देता है, एंड बहुत स्लोली यहाँ पे पहुंचता है। तो अगर ये टाइम ज्यादा ले लेगा वहां पहुंचने का, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो एक्सप्रेशन है करंट का, दैट इज dq/dt, अगर उसमें मैं t बढ़ा दूंगा तो करंट की संख्या घट जाएगी, है ना, बिकॉज I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। एंड आपने यही पढ़ा है, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर चार्ज का फ्लो या उसकी रेट घटेगी कहीं ना कहीं, तो मैं कहूंगा कि ये मटेरियल जो है ये ज्यादा रुकावट पैदा कर रहा है करंट को मूव होने में। तो उसी जो टर्म को, जो मैंने अभी बोला रुकावट, इसी टर्म को इंग्लिश में अगर मैं फ्रेज करता हूं तो इट इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब सोच के देखिए, एक तरफ मैं ये सोच सकता हूं कि ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज अगर किसी मटेरियल में होगा तो इट विल हेल्प अस इन कंडक्टिविटी। दूसरा पहलू इसका ये कहता है कि अगर ज्यादा चार्ज आपके पास है मटेरियल के अंदर, तो ज्यादा पार्टिकल्स आपस में टक्कर ज्यादा करेंगे, तो वो रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर होगी, ठीक है। तो इसीलिए कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर आपको यहाँ पे थॉट ज्यादा लेना है, उनके ऊपर हम धीरे धीरे बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन पार्ट के ऊपर। इट इज बेसिकली डिफाइंड एज ऑपोजिशन, रुकावट ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट बेसिकली, लिख लीजिए इसे भी, arises ड्यू टू मल्टीपल collisions inside the conductor due to which current decreases gradually, है ना। तो जैसे जैसे कोलिजन बढ़ते हैं वैसे वैसे समय ज्यादा लगता है इलेक्ट्रॉन को पहुंचने में, वैसे वैसे जो है करंट भी घटता है। तो करंट का घटना, इसका मतलब किसी ने उसको रोका फ्लो होने से, किसी ने अपोज किया उसके फ्लो को। दैट अपोजिशन ऑफर्ड बाय द मटेरियल इज बेसिकली टर्म्ड एज रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हमारा अगला डिस्कशन उसी पे रहेगा। सबसे पहले तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, हमें उस पर बात करनी होगी। मैं जानता हूं ये पार्ट आपका ऑलरेडी पहले का पढ़ा हुआ होगा, एंड आप सोच रहे होंगे कि ये सब चीजें हमें ऑलरेडी पता है, तो मैं शॉर्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ छोटा पोर्शन बता के, जैसे एसआई यूनिट जो हमारी है रेजिस्टेंस की, वो होगी कितनी, ध्यान से देखो, R इज इक्वल टू V/I है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, वोल्ट पर एम्पियर, है कि ना। ठीक है, अब मैं इसका होमवर्क आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आपको इसकी डायमेंशंस लिखनी है बच्चों, ठीक है। तो आपको डायमेंशन कैसे लिखना है वो आपको आता ही है, तो इसकी डायमेंशन लिख के दिखाइएगा। इसी को हम लोग ओम भी कहते हैं, एंड इसका सिंबल होता है कुछ इस तरीके, ठीक है। हेडफोन जैसा सिंबल होता है, उल्टा हेडफोन बनाया जाता है इस तरीके का,
रेजिस्टेंस को हम R सिंबल से डिनोट करेंगे एंड इसका सर्किट सिंबल इलेक्ट्रिक सर्किट। ऐसे अगर आपको रेजिस्टेंस दिखाना है किसी भी सर्किट के अंदर तो यूं ऐसे जिगजैग लाइंस के थ्रू शो किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ अ रेजिस्टेंस इज शोन। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मैंने जस्ट अभी जो थोड़ी देर पहले ही क्लास की बिगनिंग में जो डेरिवेशन किया था वहां भी आप देख सकते हो एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। बच्चों इस चीज को बहुत आराम से आप इजीली डाइजेस्ट कर पाएंगे कि अगर मेरा वायर बड़ा है ना, एक ये वायर है एंड एक मेरा ये वायर, ठीक है। इफ दिस इज R1 एंड दिस इज R2, डेफिनेटली जिसकी लेंथ ज्यादा बड़ी है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। हेंस आई विल से इफ L2 इज ग्रेटर देन L1 देन डेफिनेटली R2 इज ग्रेटर देन R1। आप यहाँ से इजीली कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसकी लेंथ ज्यादा होगी वहां पे उसको ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा एंड दैट इज द रीजन व्हाई रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। नेक्स्ट डिपेंडेंस इज टू लेंथ के बाद नेक्स्ट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। यानी कि अगर एक वायर पतला है, ठीक है, एंड एक वायर मोटा है ना, एक वायर पतला है एंड एक वायर मोटा है, इसकी रेडियस R1 या फिर इसका एरिया A1 मान लेता हूँ, इसका एरिया A2 मान लेता हूँ। इफ A2 इज ग्रेटर देन A1, ठीक है, देन डेफिनेटली R2 एंड इसका R1 विल बी लेस देन R1 अगर दोनों की लेंथ सेम है तो, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि डेफिनेटली जो आपका थिन वायर है, सकड़ा रास्ता, आप ऐसे इमेजिन करो अगर पतली गली होगी तो ट्रैफिक जाम ज्यादा हो सकता है। सकड़े रास्ते में इलेक्ट्रॉन को जाते वक्त ज्यादा कोलिजन मिलेंगे, उसको वक्त ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा अंदर, वो दूसरे एंड पे लेट से पहुंचेगा एंड करंट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा एंड हेंस रेजिस्टेंस विल बी ऑफर्ड एज अ हायर, है ना। तो रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं यहाँ पे ऐसे कंक्लूड कर सकता हूँ दैट थिन वायर्स हैव हाई रेजिस्टेंस, थिन वायर्स हैव हाई रेजिस्टेंस। आई कैन इंक्लूड दिस पॉइंट है, ठीक है, एंड थिक वायर्स हैव लो रेजिस्टेंस, ठीक। थर्ड पॉइंट, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। आपका मटेरियल किस तरीके के नेचर का है, यानी कि उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, इस पे भी डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस। एंड यू वोंट बिलीव दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी टर्म्ड एज रेजिस्टिविटी, जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी ही देर में, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेट्स कम ऑन पॉइंट 4, टेम्परेचर। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट है। चलिए इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। अभी क्या होता है बच्चों, आपने नोटिस किया होगा इन केमिस्ट्री में हम लोगों ने बहुत बार इस चीज को डिस्कस भी किया है। व्हेन यू हीट समथिंग, जब भी कभी आप किसी चीज को हीट करते हैं, है ना, अक्सर होता ही है ऐसा कि हम लोग चीजों को हीट करते हैं। हीट करने से क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल के पास या किसी भी एटम के पास क्या चीज बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उसके नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ने लगते हैं, वो ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स करता है, फिर उसके बाद ज्यादा कोलिजन्स करने से टाइम वेस्ट होता है एंड अल्टीमेटली आप जगह पे जहाँ डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हैं वहां और देरी से पहुंचते हैं एंड दैट्स व्हाई आई कैन कंक्लूड दैट करंट विल बी लेस एंड रेजिस्टेंस ऑफर्ड विल बी हायर। तो ऐसा देखा गया है कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। मैं यहाँ लिखा देता हूँ, एज टेम्परेचर राइजेस, है ना, कंडक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। इन अ कंडक्टर नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू विच करंट डिक्रीजेस एंड रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर जब बदलता है तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस भी बदलता है, यानी कि रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। अब उसका फॉर्मूला क्या है वो हम आगे डिस्कस करते हैं इन डिटेल लेटर, है ना। फिर आता हूं मैं फिफ्थ पार्ट पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों एंड कई जगहों पे इसके बारे में नहीं दे रखा होता है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फ्लो ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर, है ना। चलो अब मैं आपको धीरे धीरे जो है इन सारी चीजों के बारे में फीलिंग दूंगा, बट फिलहाल पहले मैं एक फॉर्मूला एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास दो प्रोपोर्शनलिटीज हैं, एक R प्रोपोर्शनल टू L एंड R प्रोपोर्शनल टू 1/8। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, है ना, ये वाली मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी एंड दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, ठीक है।
फिर यहाँ से आप अच्छी तरह जानते हो प्रोपोर्शनलिटी जब हटाई जाती है तो एक कांस्टेंट आता है विच इज बेसिकली टर्म्ड एज रेजिस्टिविटी, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी which is basically defined as resistance of a unit wire having unit cross section area ठीक है। तो R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। ठीक, अब ध्यान से सुनो, ये हमारा मेन फॉर्मूला है जिसके ऊपर हमें बार बार डिस्कशन करना है। ठीक, अब ये R रेजिस्टेंस, ये L लेंथ, ये A एरिया। तो आप ध्यान से देखोगे जो विजिबल फैक्टर्स हैं जिन पे मेन हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है वो लेंथ और एरिया है। वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, मैंने आपको बताया था, इट इज डिसाइडेड बाय द मटेरियल डिसाइड करता है व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी। तो ये कांस्टेंट है ना, रो इज कांस्टेंट, ठीक है, विच इज नोन एज रेजिस्टिविटी। रो इज कांस्टेंट विच इज नोन एज रेजिस्टिविटी, विच इज बेसिकली, ऐसे आप लिख सकते हैं। नाउ दिस रो इज प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि इसको आप यहाँ लिखिएगा। एंड इट इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ, ध्यान से देखना, आर, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इफ एरिया बिकम्स 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ बिकम्स 1 मीटर देन रो विल बी इक्वल टू आर। तो ऐसा कहा जाता है रेजिस्टिविटी इज बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट वायर हैविंग यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम डिफाइन करते हैं। एंड इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम इंटू मीटर। ध्यान से देखो, जो यूनिट आपको यहाँ दिखेगी इट विल बी ओम इंटू मीटर, ठीक है। अब बात करता हूँ टेम्परेचर की, है ना। ध्यान से देखिए, लेट्स टॉक अबाउट टेम्परेचर, डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। ठीक, अब कैसे जो है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट मी जस्ट फिनिश ऑल द कंटेंट सो दैट वी कैन डिस्कस इट फास्टली, ठीक है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अक्सर क्या होता है जब कभी भी किसी कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज होता है तब ऑटोमेटिकली हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उसके कॉलिजन्स के अंदर इफेक्ट आता है। आप ऑलरेडी केमिस्ट्री के अंदर इस फिनोमेना को स्टडी कर चुके हैं। यू बेटर नो दिस, व्हेनेवर टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड नंबर ऑफ कॉलिजन्स इन दैट मैटर इंक्रीजेस, उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, राइट। तो इफ वी से दैट टेम्परेचर of a conductor or a wire, कहीं पे भी if there will be increase in temperature that will result into increase in number of collisions, ठीक है। तो बहुत ही कॉमन सी चीज है, मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियरिटी इसमें आ गई होगी। Now if collisions will be more and more frequent, ध्यान से सोचना, if collisions will be more and more frequent then definitely the relaxation time, यानी कि दो collisions के बीच का the waiting time of an electron will definitely be dropping down। ड्रॉप क्यों होगा? अगर मैं किसी भी चीज को तेजी से करने लग जाऊंगा, अगर मैं किसी भी चीज को बहुत रैपिडली करने लग जाऊंगा तो द टाइम बिटवीन द टू ब्रेक्स, यानी कि दो कॉलिजन्स के बीच का जो वक्त होगा, दैट वक्त विल बी वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू बिफोर, क्योंकि मैं तेजी से काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो which will reduce our relaxation time, यानी कि आपका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो घट जाएगा, यानी कि योर टाउ विल डिक्रीज। नाउ दिस कॉजेस इंक्रीज इन द रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। यही सेम फिनोमेना जो है हम लोग, यही सेम एक्सप्लेनेशन जो है वी यूज फॉर रेजिस्टेंस एज वेल एज रेजिस्टिविटी। तो हमने अभी भी सीखा था कि रो का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है m अपॉन n इनटू e स्क्वायर टाउ। आप ध्यान से देखिए, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इफ टाउ विल इंक्रीज, डेफिनेटली जो रो है इट विल इंक्रीज बिकॉज़ रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, ठीक है। तो ये कारण है, ये एक्सप्लेनेशन आप हमेशा दे सकते हो। नाउ व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन, दैट फार्मूला व्हिच वी विल यूज फॉर टाइम वेरिएशन, है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा देखने के लिए आई हैव दिस प्रूफ विद मी। लेट्स से किसी जैसे आप सपोज हम लोग कभी भी मार्केट में अगर वायर परचेज करने जाते हैं, है ना, तो इफ़ यू हैव बीन टू एनी इलेक्ट्रिकल शॉप तो आप देखोगे कि उनके पास एक पूरा रील होता है, रील, उसके अंदर काफ़ी सारा वायर लपेटा हुआ होता है, राइट। एंड आप अगर जाके कहते हैं कि जस्ट गिव मी 2 मीटर्स ऑफ वायर, तो वो मेजर करके दे विल गिव यू द वायर इन 2 मीटर्स लेंथ, ठीक है। तो यानी कि लेंथ इज समथिंग विच कैन बी मॉडिफाइड, है ना। आपको 2 मीटर चाहिए
your friend or anybody else in the market can demand for 10 meters also. Depends कि हाउस की लेंथ कितनी है, एक ही लेंथ में कितनी वायर यूज की जा सकती है ना। आपने देखा होगा किसी किसी घर में जब कंस्ट्रक्शन होता है या फिर किसी किसी घर में जब कोई भी रेनोवेशन का वर्क होता है, तब उस टाइम पे खूब सारे वायर्स को खरीदा जाता है, खूब सारे रोल्स, इतने मोटे मोटे रोल्स जो होते हैं 50 मीटर वायर के, वो मंगाए जाते हैं। ठीक है, तो आप खुद सोच के देखिए, जितनी ज्यादा लेंथ का वायर आप यूज करने वाले हैं अपने घर में, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस आपके घर की वायर का हो जाएगा, इजंट? तो अब वायर मार्केट में बहुत अलग अलग तरीके के हैं, है ना। किसी की थिकनेस ज्यादा मोटी होगी, किसी की थिकनेस बहुत कम होगी, किसी की बहुत ज्यादा कम होगी। ठीक है, तो हर एक जगह पे हम अलग अलग तरीके का वायर यूज करते हैं। सपोज वॉशरूम के अंदर मुझे गीजर रखना है ना, बाथरूम के अंदर हमारा गीजर है, सपोज कीजिए आप, है ना। तो गीजर के लिए मुझे एक ऐसा वायर यूज करना पड़ेगा जो ज़्यादा करंट कैरी कर सकता हो, बिकॉज गीजर का जो लोड होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ज़्यादा करंट कैरी कर सकता हो वैसा वायर लेना पड़ेगा। तो आई हैव टू मेक श्योर, ध्यान से सोचिएगा, आई हैव टू मेक श्योर जहाँ से घर के अंदर करंट एंटर हो रहा है, वो गली, वो पासेज, वो करंट को अलाउ करने वाला वायर थोड़ा ज़्यादा मोटा, यानी कि ज्यादा करंट को अलाउ करने वाला हो। जब वो ज्यादा करंट अलाउ करेगा तभी उस वाले वायर से मैं हर कमरे के अंदर, हर रूम के अंदर वायर्स को कट करके ऊपर के फ्लोर में, नीचे के फ्लोर में, हर तरफ वायर को अलाउ कर सकता हूँ। सपोज मेरे घर में 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो मैंने नीचे 4 एम्पियर्स का करंट अलाउ कर दिया। अब बचा कितना? 6। तो मैंने बाकी 3 सेकेंड फ्लोर पे अलाउ कर दिया, फिर बाकी 3 फर्स्ट फ्लोर पे अलाउ कर दिया। ऐसे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, ऐसे मैंने सब जगह अलाउ कर दिया करंट। इस तरीके से करंट को बांटा जाता है। तो आगे मैं आपको पूरी पिक्चर क्लियर करूंगा, बट फिलहाल आप सिर्फ इतना समझें कि हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग हमें वायर सिलेक्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, उनकी थिकनेस, उनकी लेंथ, ये सब चीजें जो है ये एडजस्टेबल हैं, ये वेरी कर सकती हैं। जो एक फंडा, जो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू जो नेचर ऑफ मटेरियल से डिसाइड होती है, दैट इज रेसिस्टिविटी, वो एक ऐसी चीज है जो हर वायर की, हर मटेरियल की अलग अलग होती है। जैसे अगर मैं बात करूं मिल्क की, तो आपने देखा होगा आजकल मिल्क में वेराइटीज आने लगी, है ना। देयर इज अ मिल्क which is 40 rupees a liter, there is a milk which is 60 rupees a liter, there is a milk which is 100 rupees a liter. What is the difference between these milks? That difference is in the density, the fat content, है ना। तो आपने ये चीजें नोटिस कर रखी हैं, तो you will know कि कहीं ना कहीं there is a difference। तो यहाँ वायर्स के केस में जो डिफरेंस होता है, इट इज अ डिफरेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। ये डेंसिटी, जैसा हम डेंसिटी का कांस्टेंट इतने टाइम से पढ़ते थे ना हम लोग, वैसे यहाँ पे वायर के अंदर जो डेंसिटी वाला कांसेप्ट रेजिस्टेंस को लेते हुए, वो रेजिस्टिविटी कॉपर वायर की फिक्स कर दो आप, व्हाटएवर इट इज। अब अलग अलग टुकड़ों की लेंथ अलग अलग होगी, तो रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। तो मैं सीधे ही यहाँ पे जो बात करने वाला हूँ वो उसी कोर पॉइंट की करने वाला हूँ, यानी कि उसी डेंसिटी की करने वाला हूँ, यानी कि उसी रेजिस्टिविटी की करने वाला हूँ। तो लेट्स से if temperature is increased by dt, resistivity is increased by d rho। मैंने मान लिया छोटा सा इंक्रीमेंट टेम्परेचर में होते ही रेजिस्टिविटी कितनी बढ़ गई होगी, d rho से। तो मैं ये कह सकता हूँ जितना टेम्परेचर बदला उसका पूरा का पूरा रेस्पॉन्सिबल, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ जितना भी टेम्परेचर बदला उसी की वजह से जो है d rho भी बढ़ा, तो दे आर प्रोपोर्शनल। ऑल्सो रेजिस्टिविटी में क्या चेंज आता है, इट इज डिपेंडेंट ऑन कि आपकी इनिशियल रेजिस्टिविटी रूम टेम्परेचर पे कितनी थी, है ना। तो दैट्स व्हाई इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टिविटी आल्सो। कंबाइनिंग बोथ प्रोपोर्शनलिटीज, आई विल गेट दिस फाइनल इक्वेशन। जब कभी भी किसी प्रोपोर्शनलिटी को मुझे रिमूव करना होता है, द थिंग व्हाट वी डू इज वी ऐड अ कांस्टेंट। तो जब हम इधर कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो यहाँ का कांस्टेंट खुद एक प्रोपोर्शनलिटी साइन के जैसे ही सिंबल को डिनोट करता हुआ है, एंड इसका नाम है अल्फा। ठीक है, तो वी विल यूज अ कांस्टेंट अल्फा व्हिच इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसको बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। नाउ I can rewrite my this equation as d rho is equals to alpha rho dt। अब आप सिर्फ और सिर्फ rho को एक साइड ले लीजिए and dt को एक तरफ ले लीजिए। d rho by rho will be ln rho, है ना। नीचे rho initial, ऊपर rho final, and it is equals to alpha t p initial and t final। एक्सप्रेशन आ जाए। Now
यू वेरी वेल नो, मैं ln रो को ln रो f माइनस ln रो i, मैंने यहाँ पे एक स्टेप पास किया है जो मेरे ख्याल से आपको दिख गया होगा, ln रो f माइनस ln रो i. You very well know by the property of log I can write this as ln रो f upon रो i and it will be e delta t which is easily visible to you. Sorry, alpha delta t है ना. Now अगर ये नेचुरल लॉ है तो इसके एक्सपोनेंट नीचे जो e होगा ये यहाँ से सीधे पावर में चला जाएगा एंड द एक्सप्रेशन विल बिकम जस्ट लाइक दिस. ठीक है, तो इफ एक्सप्रेशन बिकम्स जस्ट लाइक दिस, दिस कैन बी रिड्यूस्ड टू दिस फॉर्मेट ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंक्लूजन that alpha delta t must be very less than 1. Alpha delta t must be very less than 1. ठीक है. सिमिलरली जो रेजिस्टिविटी के ऊपर आप फंडा यूज कर रहे हैं, जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, दैट सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर रेजिस्टेंस एज वेल अंडर द सेम कंडीशन, दैट इज अल्फा डेल्टा टी मस्ट बी वेरी लेस देन 1. एंड ध्यान रखिएगा बच्चों, आपकी जो अल्फा की वैल्यू आने वाली है इट विल बी ऑलवेज एंड ऑलवेज राउंड अबाउट 10 की पावर माइनस 5 के ऑर्डर का. इसी ऑर्डर का होता है अल्फा का वैल्यू हमारा, एंड दैट्स व्हाई these both will always hold and this will be your always usable formula. ठीक है, तो आप इसे हमेशा यूज कर पाओगे बिकॉज अल्फा की वैल्यू 10 की माइनस 5 की ही होती है. यस, रिमेंबर वन थिंग, इफ डेल्टा टी देखो जो टेम्परेचर है दैट इज डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर. बेसिकली टेम्परेचर मुझे कितना दिया जाएगा, 200, 300, ज्यादा से ज्यादा 1000. ठीक है, इफ दे विल गिव मी 1000 आल्सो, देन आल्सो अल्फा की वैल्यू इज अल्फा इनटू डेल्टा टी की वैल्यू इज 10 की पावर माइनस 2. अगर मैं 10 की माइनस 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ, स्टिल आई एम हैविंग 10 की पावर माइनस 2. तो 10 की पावर माइनस 2 होने का मतलब ये है स्टिल देयर इज 0.01, यानी कि इट इज लेस देन 1. तो आई कैन यूज द फॉर्मूला. तो याद रखिएगा, मैक्सिमम मैंने 1000 एज्यूम किया एंड तब भी फॉर्मूला वैलिड है, सो देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, यू कैन यूज इट. बस कुछ चीजें हैं व्हिच यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट, which I will explain you when we will be performing the question over this principle. ठीक है, फिलहाल एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा. What about the unit of alpha? SI unit. So just focus on the expression. Focus on this expression. You can see automatically by dimension analysis you will get d rho की जो भी यूनिट है वो रो की यूनिट से कैंसिल हो जाएगी and hence alpha will be only equal to 1 upon delta t. तो SI unit of alpha is degree Celsius inverse और Kelvin inverse, पूरा लिख ले, और Kelvin inverse. ठीक है, तो these are the SI units of alpha. ठीक है, जिनका आपको ध्यान रखना है. तो this is it. ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं कुछ और क्वेश्चंस. नाउ बाकी का जो भी सेशन है आज के लेक्चर का, इसमें सारे सवाल बेस्ड हैं on I equals to any a b d and all. चलिए ध्यान से देखिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1. Freeze the screen and try to do this. It is a very simple one. I want ये क्वेश्चन सब आप ही लोग करें, है ना. ध्यान से देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रखा है there is a electron beam. इलेक्ट्रॉन बीम मतलब काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही सीध में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं. अब आप जानते हो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, if I am assuming left to right, then definitely जो करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट मूव कर रहा होगा, यानी करंट की डायरेक्शन विल बी राइट टू लेफ्ट. ठीक है, नाउ एरिया ए विल बी 1 मिलीमीटर का स्क्वायर. अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं एसआई में लेके चलूं तो 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर. ठीक है, इफ अ टोटल ऑफ दिस मच इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 6 into 10 की पावर 6, तो क्या मैं कह सकता हूं जो टोटल चार्ज फ्लो कर रहा है इट इज n into e, यानी कि 6 into 10 की पावर 6 into 1.6 into 10 की power -19 coulombs. This will be the total charge which is going through a cross section and perpendicularly. वाह, सबसे अच्छी चीज ये है कि आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उससे इलेक्ट्रॉन्स परपेंडिकुलरली जा रहे हैं, यानी करंट भी परपेंडिकुलर है. तो यही चीज हमें चाहिए होती है. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द करंट. टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड का टाइम इंटरवल मिल रहा है. तो I is equals to Q total upon time, मुझे सिर्फ और सिर्फ करना है. तो करंट आ जाएगा 6 into 1.6 into 10 की पावर माइनस जो भी आएगा यहाँ पे 19 -30 लिख देता हूँ अपॉन 1 है ही सही, एंड दिस मच एम्पीयर्स इज द करंट. ये
कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। रही बात करंट डेंसिटी की, तो आप जानते हैं करंट डेंसिटी इज I upon A, दिस वैल्यू अपॉन दिस विल बी अवर आंसर। अपॉन एरिया करेंगे तो यहाँ पे 10 की पावर -6, ठीक है। अब ये वैल्यूज ऊपर चली जाएंगी, ऑटोमेटिकली यू विल गेट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द करंट डेंसिटी, ठीक है। सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे, जल्दी सोचिए। जो फॉर्मूला था आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो था I = NEA/VD, ये हमारा फॉर्मूला था। तो इफ आई वांट टू फाइंड आउट VD, इट विल बी I upon NEA, ठीक। ध्यान से देखिए क्या क्या डेटा दे रखा है, उस पर फोकस कीजिए। क्या हमें I की वैल्यू गिवन है, ध्यान से देखो, इट इज यस 1 एम्पियर गिवन है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी गिवन है, एंड यस इट इज 2 मिलीमीटर। याद रखिएगा, देखो आपको हमेशा एरिया जो है मिलीमीटर के फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि जो वायर्स होते हैं वो वाकई में बहुत पतले होते हैं। तो 2 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर यहाँ से मुझे पता चल चुका है, तो डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। इफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब आपको पता है दिस इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये वाली जो टर्म है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये वाला जो पर्टिकुलर वैल्यू है आपको ऑलरेडी गिवन है, बट दिस वैल्यू इज गिवन इन सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको हमें चेंज करना होगा, एंड दिस वैल्यू विल बी 8.5 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब ये है। तो याद रखिएगा, इफ यू आर डीलिंग विद SI यूनिट, देन दिस मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब बनाना चाहता हूँ, तो आई हैव टू कीप हियर 10⁻⁻2 की पावर 3 इनटू मीटर क्यूब, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ n पर मीटर क्यूब। बट याद रहे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट करनी है। अब मेरे पास सारा डेटा अवेलेबल है, जस्ट राइट एवरीथिंग व्हिच यू हैव। तो I की जगह 1 रखा, अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह 8.5 × 10⁻22 रखा, 10⁻² का क्यूब, ये ऊपर चला जाएगा तो इधर ले लेता हूँ 10⁻⁻6, ठीक है। 10⁻⁻6 ऊपर चला गया, इनटू ये n की वैल्यू यहाँ आ गई, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 है, इनटू एरिया की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻6। नाउ सिंपली सॉल्व दिस बिग नंबर्स एंड यू विल गेट द आंसर एट योर एंड, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी डू क्वेश्चंस इन I = NEA/VD। मैं भी और सवाल आपको कराने वाला हूँ, जस्ट लगातार इनको कॉपी करते रहें, समझते रहें कि किस तरीके से जो है डेटा को फेच करना है। दैट डेटा व्हिच इज फेच्ड फ्रॉम द क्वेश्चन, इट दे कैन ऑलवेज प्ले इन द टर्म्स ऑफ कन्वर्जन, तो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट, नथिंग एल्स, अदरवाइज क्वेश्चन विल बी ओनली मैथमेटिकल कैलकुलेटर, नथिंग मच, ठीक है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बिकॉज जो भी चीजें आपने आज पढ़ी हैं उनके ऊपर हमें थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा, तभी जो है इसकी प्रॉपर कहते हैं ना नरिशिंग हो पाएगी इस पर्टिकुलर टॉपिक की सेम डे पे। देखिए, अब मेरे सामने कुछ सवाल हैं, उन कुछ सवालों को मैंने काफी सिलेक्टिव वे में यहाँ पे रखा है। द रीजन फॉर दैट इज क्योंकि मैं चाहता था कि आपको एक फील उस चीज से मिले कि किस तरीके से जो है वायर्स मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं एंड व्हाट इज देयर पर्पस। सपोज कीजिए कि कोई एल्यूमिनियम का वायर है ना, एल्यूमिनियम का वायर है, एंड उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज दिस 2 मिलीमीटर स्क्वायर, जैसा कि आपको दिख रहा है ना, और उसकी लेंथ जो है 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मुझे पता है कि एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी ये है, तो मैं कोई भी चीज एल्यूमिनियम की उठा लूं, है ना, उस एल्यूमिनियम के इतने बड़े टुकड़े के अंदर से काफी सारे एल्यूमिनियम के वायर बना लूं, तो उन सभी वायर्स की, चाहे एक एल्यूमिनियम का इतना मोटा वायर बनाया, एक बहुत पतला सा बनाया, एक कुछ अलग तरीके का बनाया, क्या उन सभी की रेजिस्टिविटी सेम रहेगी? मैं यही सेम चीज आपको बताना चाह रहा है। एक्चुअल में मैं अगर कभी भी किसी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, या उस मटेरियल की किसी भी एक विशेषता, कोई भी उसकी स्पेशल चीज की बात करता हूँ, दैट स्पेशल चीज इज रेजिस्टिविटी बेसिकली, जिसकी हम बात कर, ठीक है। तो अब रेजिस्टिविटी मटेरियल बेस्ड होता है, मटेरियल बेस्ड। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस मटेरियल की डायमेंशंस को चेंज कर सकता हूँ, मैं इसकी थिकनेस चेंज कर सकता हूँ, थिकनेस यानी कि इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ना,
मतलब मैंने इतना मोटा वायर बनाया तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये रखा। मैं इसकी लेंथ को चेंज कर सकता हूँ, जैसा अभी एग्जाम्पल लिया था मैंने कि किसी को 2 मीटर वायर चाहिए तो किसी को 10 मीटर वायर चाहिए, किसी को 20 मीटर वायर भी चाहिए हो सकता है। तो लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यही चीज यहाँ पे आपको शो करना चाहता हूँ। इस केस में सिंपली जो डेटा आपको गिवन है इससे हमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर हुज एरिया इज 2 एंड लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो करके दिखाइए। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, मुझे नहीं लगता है इसमें कोई दिक्कत होगी। ध्यान से देखिए, आर की वैल्यू मैं लिखूंगा रो इंटू एल बाय ए, तो रो की वैल्यू लिखी 2.6 इंटू 10⁻⁻8। यूनिट्स का ध्यान दीजिएगा, यूनिट्स प्रॉपर डलनी चाहिए। एल की वैल्यू डालूंगा 50/100, सेंटीमीटर में था इसलिए हाथों हाथ मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अपॉन एरिया के लिए डालूंगा 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे, आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा ओम्स के अंदर। आई बात समझ में? अब सपोज कीजिए कि ये एक इस वायर का था, है ना, जिसकी शेप इस तरीके की थी। ठीक है, मुझे कोई मोटा वायर चाहिए, ये है ना, एंड एल्यूमिनियम का ही चाहिए। ये भी एल्यूमिनियम है, ये भी एल्यूमिनियम। ठीक है, इसका एरिया इस बार मैंने रखा 5 मिलीमीटर स्क्वायर, थोड़ा और ब्रॉड, और इसकी लेंथ जो है मैंने रखी 1 मीटर, है ना। इसकी लेंथ अब मैंने रखी 1 मीटर। मैंने एक मोटा वायर बनाया और एक लंबा वायर भी बनाया, थोड़ा और लंबा कर दिया इस वायर। तो आप मुझे बताइए क्या इस वायर की रेजिस्टिविटी सेम टू सेम रहेगी या नहीं रहेगी? अगर मैं मटेरियल सेम रख रहा हूं तो रेजिस्टिविटी बिल्कुल सेम होगी। नाउ दिस न्यू मटेरियल will have 2.6 into 10⁻⁻6 into length 1 upon 5 into 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 10⁻⁻6 cancel, this will be the resistance in ohm। तो आप देख सकते हो this is R dash for this one and this is R for this one। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कैसे जो है वैल्यूज वेरी कर जाती है। तो मैं ये कह सकता हूँ resistivity is something which is material specific, but resistance is something which is entirely based on material as well as dimensions of the conductor। ठीक है, तो मैंने आपको जो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस लिखा है तो उसमें सारी चीजें कवर की है। इनफैक्ट एडिशनल चीज कवर की है, दैट इज फ्लो ऑफ करंट। उसके ऊपर ये नेक्स्ट एग्जांपल है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है एक अजीब से शेप का कंडक्टर। ध्यान से देखना, दिस कंडक्टर इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। एक तरीके की प्लेट है रेक्टेंगुलर, इस रेक्टेंगुलर प्लेट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है ना। ये 10⁻⁻8 था, आई वाज, तो 10 की पावर यहाँ पे आपका आ जाएगा -2 इफ दिस विल कैन। ठीक है, ओके डन। आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमसे ये कहा गया है कि इफ डायमेंशंस ऑफ द प्लेट ऑफ द कॉपर आर गिवन, कैसे दिया हुआ है, देयर इज दिस मच प्लेट थिकनेस, इसकी सी है ना। थोड़ा सा 3D लुक मुझे लग रहा है अभी नहीं आ रहा है, तो जस्ट फोकस ऑन दिस फैक्ट कि ये इस तरीके का है, ये इस तरीके का है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत 3D ये हो गया। ठीक है, अब ऑब्वियसली इसकी इस साइड से अगर करंट एंटर होता है एंड इस साइड पे एग्जिट करता है यहाँ से। ठीक है, तो इसको मैंने ए इधर नाम दिया है, इसको बी नाम दिया है, एंड टॉप पे इसको सी दिया है एंड बॉटम पे इसको डी दिया है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि करंट यहाँ से एंटर हो एंड यहाँ से एग्जिट करे, यानी कि बॉटम के नीचे के साइड से, है ना। तो यहाँ ना दिखा के इसके एकदम नीचे से बाहर निकले। ठीक है, तो और एक लास्ट जो केस होगा उसमें ये होगा कि ये यहाँ से बाहर से अंदर जाएगा, तो ये अंदर जाएगा तो ये यू एंटर होगा कुछ ऐसे, एंड इधर पीछे की तरफ से यू अंदर जाएगा। तो लेट्स से दैट E to F, दिस केस इज E to F। ये थोड़ा 3D फील आपको आ गया होगा, राइट। अब इसमें जो डायमेंशंस हम लोगों ने ली हैं, दिस डायमेंशन इज C, दैट इज हाइट, दिस इज A एंड दिस इज B। ठीक है, तो मैं इस चीज की फील देने के लिए आप सबसे पहले से इसे नोट कर लीजिए, सो दैट कि मैं इसकी फील के लिए आपको हर तरीके का व्यू दे सकता, है ना। तो इफ डायमेंशंस ऑफ द प्लेट ऑफ द कॉपर आर गिवन एंड रेजिस्टिविटी इज रो, आपको इसकी रेजिस्टिविटी रो मान लेनी है। फाइंड द रेजिस्टेंस व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, यानी कि सबसे पहले इधर देखेंगे, लेफ्ट टू राइट। ध्यान से सोचिएगा, अब सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। अगर आपका फ्लो इस तरीके का है तो मैं आपको, आप सोचिए आप इस तरफ खड़े हैं ए वाली साइड पे, तो आपको जो ये बॉर्डर दिखेगी ना, ये वाली, तो ये बॉर्डर आपको यूं दिखेगी, है। ये पट्टी है एक तरीके की, ये पट्टी है एक तरीके की। इस पट्टी का यानी कि इस शेडेड पोर्शन का
जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये कितना है, पहले तो मुझे ये निकालना होगा। दिस इज सी एंड दिस इज हाउ मच, दिस इज बी। ठीक है, फॉर आई ए बी व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, ये उसके लिए है ए टू बी। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, इट विल बी बी इंटू सी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखा। एंड जो करंट को लेंथ कवर करनी पड़ रही है, यहाँ से करंट एंटर हो रहा है, यहाँ पे एग्जिट हो रहा है, तो लेंथ जो कवर कर रहा है करंट वो है ए। तो रेजिस्टेंस ए बी विल बी इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए, तो ए अपॉन बी सी आंसर। ठीक है, एंड जो लेंथ कवर कर रहा है वो तो ए दिख ही रहा है। आप इस तरीके से जो है हमें सॉल्व करना होता है। फॉर लेट्स से अब करंट व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम सी टू डी, तो सी से डी यानी कि ऊपर से नीचे, ध्यान देना बच्चों। तो ऊपर वाला जो एरिया है, नाउ दिस इज द क्रॉस सेक्शन, तो ऊपर वाला एरिया कैसे निकालेंगे देखना ध्यान। ये ऊपर वाला ये ए है एंड ये साइड वाला ये बी है ना। तो जो एरिया होगा वो होगा ए इंटू बी, क्योंकि आपका करंट यूं एंटर कर रहा है, तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया आप ऑफर कर रहे हैं वो ए इंटू बी। अब यहाँ से करंट एंटर हो रहा है इस वाली फेस पे एंड इस वाले फेस पे एग्जिट कर रहा है, तो जो लेंथ वो कवर कर रहा है वो सिर्फ सी है। तो इस केस में जो इसकी लेंथ है वो सी है, हेंस आई कैन राइट रेजिस्टेंस सी डी विल बी इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए बी, रो इंटू एल अपॉन ए बी। इस तरीके से हमें कर, फिर इधर हटा देता हूँ इसे, जो लास्ट पार्ट है वो यहाँ कर लेते हैं। व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम ई टू डी, यानी कि यहाँ से एंटर हो रहा है वहां बाहर निकल, ई टू डी, ध्यान देना। एरिया फिर से एक पट्टी बनेगी। अब ये वाली पट्टी जो है इसमें से करंट एंटर हो रहा है, तो जो इस बार पट्टी बन रही है इट इज जस्ट लाइक दिस, ये सी है एंड दिस इज ए। तो जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है ए इंटू सी। लेंथ, यहाँ से करंट एंटर हो रहा है यानी कि यहाँ से एंटर हो रहा है एंड यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो लेंथ दैट इज बी, हेंस रेजिस्टेंस ई डी विल बी इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन एरिया, दिस विल बी रेजिस्टेंस ई डी। तो कहीं ना कहीं the way current flows through the conductor may also change the resistance, इसीलिए वो फिफ्थ पॉइंट मैंने आपको लिखाया था जो काम। ठीक, तो हमारी बात लेंथ के पैरामीटर पे हो चुकी है, एरिया के पैरामीटर पे हो चुकी है, रेजिस्टिविटी के पैरामीटर पे हो चुकी है। नाउ द लास्ट पॉइंट रिमेन्स इज टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर का एक सवाल हम यहाँ पे करेंगे, हाउ टेम्परेचर इफेक्ट्स द रेजिस्टेंस। पहले फटाफट से इसे नोट कर लीजिए एंड देन आई विल इरेज एंड वी विल डू द सॉल्यूशन हियर। देखो, हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन लिखा, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनिशियली R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। याद रखिएगा, अल्फा जिस यूनिट में दे रखा है आपको डेल्टा T भी सेम टू सेम उसी यूनिट में रखना होगा। एंड R0 याद रखिएगा, R0 is basically reference resistance, एंड यहाँ पे भी मैं ऐसे लिखूंगा, ये जो T टेम्परेचर पे आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हो, तो यहाँ पे वो टेम्परेचर रहता है माइनस टी नॉट स्क्वायर ब्रैकेट, एंड टी नॉट इज योर रेफरेंस टेम्परेचर। ठीक है, व्हेन यू डोंट नो कि किस टेम्परेचर पे इस रेजिस्टर को बनाया गया होगा, व्हेन यू डोंट नो एंड यू डोंट अंडरस्टैंड कि क्या रेफरेंस रहा होगा। देखो, वी नेवर नो कि इस वायर को 20 डिग्री सेल्सियस फैक्ट्री में बनाया गया है या फिर 27 पे बनाया गया है, वी नेवर नो। तो वी कैन नॉट कमेंट अबाउट द इनिशियल रेजिस्टेंस। जो क्वेश्चन हमको दे रहा है वैल्यू, वो ये कह रहा है कि किसी XYZ टेम्परेचर पे आपका रेजिस्टेंस इतना देखा गया। नाउ टेल अस व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस एट व्हाट टेम्परेचर, है ना। तो ये क्वेश्चन का कुछ कहने का मतलब है। तो व्हाट आई विल डू इज, फाइनल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 ohm and I don't know what is the R0 in this situation, so I'll keep it as it is। और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5, यानी कि I can write 1 2 5 into 10 की पावर -5, क्योंकि ये डिग्री सेल्सियस में, तो I have to keep something in डिग्री सेल्सियस ओनली। ध्यान से देखिए, 300 केल्विन इज ऑलमोस्ट 27 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस ही डालना पड़ेगा। 27 डिग्री सेल्सियस माइनस टी नॉट ब्रैकेट लॉ। ठीक है, इस तरीके से एट 300 केल्विन रेजिस्टेंस इज 1 ohm। नाउ 2 ohm रेजिस्टेंस कब होगा, तो R0 इंटू 1 प्लस 125 अल्फा, तो वही एज इट इज ही है। नाउ दे वांट टू आस्क दिस टेम्परेचर आल्सो, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट 2 ohm विल बी। अब क्योंकि मुझे ऑप्शंस में सारे के सारी वैल्यूज जो हैं, ऑप्शंस में मुझको सारी की सारी वैल्यूज जो हैं केल्विन में दे रखी है, तो लेट मी जस्ट कीप दिस एज T माइनस T नॉट
ओनली। अब ध्यान से सोचिए, यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास टी नॉट की वैल्यू एक्स्ट्रा रिमेनिंग आ रही है। तो इफ आई कंसिडर रेफरेंस ऑफ टी नॉट एज 0, है ना, if I consider T naught as 0 degrees Celsius, in fact, definitely, then whatever answer I will get, that answer will be also in degrees Celsius. And do remember, in the finalization, you have to convert into Kelvin. So what I will do is I'll divide both the equations. It will give me 1 by 2, 1 plus 125 into 10 की power minus 5 into 27 upon 1 plus 125 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू टी। अब आप देखिए, आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यू कैन गेट द टी, एंड आफ्टर गेटिंग टी सिंपली डू वॉट एवर योर आंसर कम्स आउट, सिंपली सेल्सियस में अगर हमारा आंसर आता है तो यू हैव टू ऐड 273 टू कन्वर्ट इनटू केल्विन। याद दिला दूं आपको हाउ टू कन्वर्ट C माइनस 0 डिग्री अपॉन 100 माइनस 0 डिग्री, एंड इट इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 373 minus 273. This is the way how we can convert from Celsius to Kelvin scale. तो ये तरीका आपको आना चाहिए. If we have to get things into Kelvin, then the formula is K equals to C plus 273. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आंसर C के फॉर्मेट में आएगा, डिग्री सेल्सियस में आएगा. So make sure you add 273 and give the answer. And answer इसका होगा this 1127. So just cross check at your end, you will be able to do this. ठीक है, and this question number 6 is your homework. Just attempt. एक फ्रस्टम जैसे शेप का मैंने यहाँ पे कंडक्टर लिया है, करंट इज स्टेडी इन दैट particular conductor. You have to comment, or you can say compare what will be the density at this point and this point 1 and 2. J पे कमेंट कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पे कमेंट कीजिए, एंड डू टेल व्हाट इज दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट पॉइंट 1 and 2 ऑन साइड्स 1 and 2. ये आपको बताना है, राइट. नेक्स्ट आते हैं सर्किट एनालिसिस की शुरुआत करते हैं. ये वही लॉज हैं जो मैंने कैपेसिटर में भी आपको बताए थे, कहा था कि वहां पे फिर से आएंगे. तो आई डोंट थिंक देयर इज much more needed in this. You already know this part. Basically, there are two laws, the two major laws which define entire circuit analysis. The first one is junction law and the second one is loop law. मैं एक एक करके बताऊंगा आपको. These laws are basically the statements of conservation of energy in a circuit and a loop, and they consist in two parts. The first part is KCL, Kirchhoff's current law, or it is also known as junction law because it always occurs and it is always commented over a junction. ठीक है, तो this law states that net incoming current at any junction is equal to net outgoing current. जैसा हम लोगों ने वहां पे कहा था. सपोज कीजिए यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है, मीन्स देयर आर 3 ब्रांचेस फ्रॉम विच करंट इज कमिंग टू दिस पर्टिकुलर जंक्शन. इस जंक्शन पे 3 ब्रांचेस से करंट आ रहा है सपोज कीजिए, एंड एक पे एग्जिट कर रहा है. देन आई विल कमेंट दैट I1 प्लस I2 प्लस I3 विल बी इक्वल्स टू I4. दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. जितना चार्ज आएगा उतना ही बाहर एग्जिट करेगा. तो दिस इज इट. इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं, बट आई हैव टू टेक देम टू आवर नेक्स्ट क्लास. So I'll be using those problems there, but make sure till this part, if you have any doubts, post me as soon as possible so that I can involve those particular doubts in the next. ठीक है, take care well बच्चा, and always keep messaging me. देखो sometimes it may happen कि मैं timely reply ना कर पाऊँ because काफी बच्चे पेरेंट्स भी मिलने आते हैं and we have to do a lot of things, क्योंकि कई लोग परेशान होते हैं. We have to talk to students also. तो कई बार ऐसा हो जाता है कि your chat may go down without my reply. Please remind me. You can remind me, and I am sorry for that. ठीक है, please do that. अगर कभी ऐसा होता है तो just let me know कि आप किस फेज पे कहाँ पे जो है बिल्कुल अटकते हैं, because it may happen कि आपने पहले कहीं पे भी छोटा ऐसा हो सकता है, कोई छोटा पार्ट इसका ऐसा हो जो आपको पहले जिसके बारे में नहीं पता है, and you want to know more about that, तो वो भी मुझे बताइए. ठीक है, चलो, take care all of you. Thank you.